सॉरी मैं वो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा था तो इसलिए अब ऑफ हो गया। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, तो क्लैंपर्स में लाइक देयर आर थ्री एप्लीकेशंस बेसिक जो हम पढ़ते होते हैं। वन इज द रेक्टिफायर, सेकंड वाज द क्लिपर एंड थर्ड इज द क्लैंपर। क्या मुझे कोई बता सकता है कि क्लैंपर का मतलब क्या है? व्हाट इज अ क्लैंपर? मुझे सर्किट की वो डेफिनेशन नहीं चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन नहीं चाहिए है। मुझे ऐसे सिंपल क्लैंप का मतलब क्या है? जी, पढ़ना। क्लैंप का मतलब क्या है? मैम पकड़ना, होल्ड गुड, करना। होल्ड करना। और टू फासन टू समथिंग, halt, to halt something else, to halt some wave. इट्स नॉट मैम बाइंडिंग। बाइंडिंग। गुड, बाइंड भी कर सकते हैं। इट्स नॉट टू हॉल्ट, टू हॉल्ट इज टू स्टॉप। इट्स क्लैस्पिंग, इट्स टू फासन, टू कलेक्ट समथिंग, टू होल्ड समथिंग। किसी एक पॉइंट से उसको क्लैस्प करना। जैसे अगर आप देखें तो मैंने यहां पर सबसे पहली चीज ये, दिस इज अ पेपर क्लैंप। ठीक है, ऊपर से आप पेपर्स को, सारे पेपर्स को इकट्ठा करके एंड देन यू क्लैंप विद दिस, ऐसा ही है ना? ये दिस इज अ पेपर क्लैंप, राइट? But in the electronic circuit, what does a clamper mean? A clamper is a circuit which shifts the signal above or below a reference level. For example, if you have a reference level like this, ठीक है, and it is zero level, so either the waveform will be on this part or it will be somewhere here, like near the reference, a little above the reference, a little below the reference. So this is the clamping, when you have the waveform on one side of the reference voltage. When the waveform is shifted to one side of the reference level, it can be shifted above the reference level or it can be shifted below the reference level. Now, again, the question is, what is the difference between a clipper and a clamper? If a capacitor is present in the circuit, that is a clamper. If a capacitor is not present in the circuit, that is a clipper. Whenever you see a capacitor in the circuit, straight away go for the output of the clamper. But if there is no capacitor, so forget about the clamper. आप जो भी output देंगे, that will be a clipped output. A clipped output means that some of the portion of the waveform is clipped off. And clamp, the all of the waveform is clamped to, is shifted to one side of the reference. ठीक है? And how many components are there? How many components are there in the clamper circuit? The important component is obviously a diode and a capacitor. Capacitor is to shift the the waveform to one side of the reference level. ठीक है? And the types of the clampers. How many types are there? Again, you have the positive clamper and a negative clamper. And again, in the positive clamper, there are two types basically. One is the clamper with no bias, and then clamper with negative bias and positive bias. अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि बायस किसको कहते हैं? तो बायस जो होती है, जो कि हम वो बैटरी वोल्टेज इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि डीसी लेवल हम इंट्रोड्यूस करते हैं,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, ये दिस इज द बायसिंग. बायसिंग होती है डीसी वोल्टेज या बैटरी वोल्टेज जो होती है, जिसको हम कहते हैं DC voltage level is introduced. Now this can either be positive or it can be negative. ठीक है. और अनबायस्ड, और ये जो जितने ये वाली जो टाइप्स हैं, ये सारी की सारी दे आर ऑल बायस्ड types of the clampers. So again, you have a positive clamper and you have a positive clamper with the positive bias, positive clamper with the negative bias, negative clamper with a positive bias, and negative clamper with a negative bias. असद, अभी कोई आया तो नहीं है क्लास में? किसी को एडमिट तो नहीं करना है? नो मैम, मेरे ख्याल से नहीं आए हैं, अभी व्हाट्सएप पर कोई मैसेज नहीं आया है. अच्छा, ओके फाइन. सो नेक्स्ट इज द क्लैम्पर सर्किट्स. अब क्लैम्पर सर्किट में आपने देखना क्या है, यू सी इफ इट इज अ पॉजिटिव क्लैम्पर. तो पॉजिटिव क्लैम्पर का मतलब ये है कि ये क्लैम्प करेगा, दिस होल सिग्नल विल बी क्लैम्प्ड अप, पॉजिटिव साइड पे क्लैम्प हो जाएगा, पॉजिटिव साइड पे वो फासन हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, पॉजिटिव साइड पे अटैच हो जाएगा, राइट? दिस होल सिग्नल, द एंटायर सिग्नल, दिस वन विल बी शिफ्टेड अप, it will be clamped to the positive side of the reference voltage. For example, you see this one, ये ऊपर चला गया है. So we say that when the signal is applied to the positive clamper, it is shifted up. When the signal is provided to the negative clamper, it is shifted below the reference level. यहां तक बात समझ में आ गई है? Is this clear to everyone? Yes, ma'am. अच्छा. Yes. Any confusion? अभी वैसे हम प्रॉपर सर्किट पे भी नहीं गए हैं, अभी हम सिर्फ क्लैम्पर सर्किट की सब वो देख रहे हैं कि ये काम कैसे करता है. We have not done anything about its circuit exactly as yet. तो यहां से हम आगे जाके देखते हैं कि how does it work. अगर आपको याद हो तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि basically, like if we can say that there are basically two types. The clampers with no bias and clampers with bias. तो आप इसको आप कह सकते हैं biased clampers, और इसको कह सकते हैं, ऊपर वाले को कह सकते हैं अनबायस्ड. तो ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई जिस तरह के मोड्स में था, क्लिपर्स में था. दिस विल बी with no bias is this one. ठीक है. और फिर बायस्ड क्लैम्पर्स में हम ये कह सकते हैं कि यहां पर we can say that in this these are the biased clampers. और unbiased की कितनी फॉर्म्स होंगी? Unbiased will be, there will be two forms. One is
positive and the other is negative. This is positive and the second one is negative. Positive and negative. So is this clear? Actually, this is these are the total types of the clampers. The clampers with no bias, unbiased clampers, so it is a positive and a negative unbiased clamper. Then these are like the biased clampers, the clampers provided with bias. So biased clampers can be divided into positive, negative, and then just because we are applying the biasing to these clampers, so it can be negative bias or it can be positive bias, either with the positive clamper or with the negative clamper. So if we see this circuit, so this is the first type, which is unbiased clamper, and in this case it is a positive unbiased clamper or a positive clamper with no bias. And this is the circuit. Can anyone tell me how does this circuit look like? ये कैसा लगता है? किसकी तरह से लगता है? मैम इसमें तो ये रेजिस्टेंस डायोड के साथ पैरेलल में है। पैरेलल की तरह से लग रहा है क्योंकि हम आउटपुट जो है वो इसके अक्रॉस ले रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, नायाब जैसे आपने कहा, इसको जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस, ठीक है, एज इफ इट्स नॉट देयर, तो फिर आप मुझे बताएं कि आपको ये कैसे लगता है? क्लिपर की तरह मैम। कौन से वाले? पैरेलल में। अब आपने ये याद रखना है कि इन द पैरेलल पेपर you take the output voltage across the diode, but it's not connected with the capacitor. Here you have a resistor. But if this resistor is replaced by a capacitor and you have the diode just like the parallel clipper, so that becomes a clamper. और ये मैं आपसे एंड में पूछूं और सर्किट की तरह भी लगता है, इफ यू रिमेम्बर, और वो आपको याद रेक्टिफायर नहीं, रेक्टिफायर के बाद बिल्कुल लास्ट टॉपिक हमने एक पढ़ा था, उसका एक पोर्शन है, इफ यू रिमेम्बर वी हैड डन वोल्टेज मल्टीप्लायर। जी मैम, डबलर वोल्टेज, डबलर, ट्रिपलर, क्वाड्रपलर, ये हमने किया था। अगर हम इसको, इस आरएल को, इस रेजिस्टर को यहां से हटा दें तो आपको ये जो सर्किट है ये आपको बिल्कुल लगता है उसकी तरह से। दिस इज जस्ट लाइक अ डबलर सर्किट। मैम फिल्टर का काम करेगा यहाँ पे जो कैपेसिटर? नहीं, यहाँ पर फिल्टर का काम नहीं करेगा, यहाँ पर स्टोरेज का काम करता है, डबलर में जिस तरह से करता है। जब कैपेसिटर जो है व्हेन इट कम्स बिफोर दिस एंड इट डज नॉट डिस्चार्ज, तो उसमें इट स्टोर्स द एनर्जी, एंड दैट एनर्जी, अगर आपको केवीएल याद हो तो वो हम आगे जाके करते हैं। लेट्स डू द आउटपुट ऑफ द क्लैम्पर फर्स्ट, ठीक है? तो अब देखें ये वाला जो आ रहा है, दिस वोल्टेज, दिस इनपुट, दिस वन, राइट? सो it is fed to this circuit, and the circuit is composed of a capacitor and a diode. अगर डायोड की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, अगर डायोड की डायरेक्शन ऐसे है तो आप इसको ये याद रख लें ऐसे ही अपनी आसानी के लिए, ठीक है? आपने ये करना है as if this negative part is the arrowhead. If this is the arrowhead,
ये आपकी आसानी के लिए बता रही हूं, ठीक है, कि ये जो होगा ये होगा कि आपने इसको शिफ्ट किस तरफ करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस, कि आपने इसको शिफ्ट किस तरफ करना है. तो जिस तरफ डायोड का ये पॉइंट होगा, इसको आप एरोहेड का कंसिडर कर लें, एंड यू विल सी दैट द वेव फॉर्म विल बी शिफ्टेड अप. ठीक है, द वेव फॉर्म विल बी शिफ्टेड अप. और अगर हम डायोड की डायरेक्शन जो है उसको हम ऑपोजिट कर लें, डाउनवर्ड्स कर लें, अगर इसका कैथोड नीचे की तरफ और एनोड ऊपर की तरफ हो, तो सारी की सारी जो वेव फॉर्म है दैट विल बी शिफ्टेड डाउन. और इसका जो फिनोमेना है, हाउ विल दैट वर्क, फिनोमेना कैसे काम करेगा, फिनोमेना जो है वो ये है कि व्हेन this diode, how will it work, कि it will work on the negative, it will be forward biased for the negative, what do you say, the negative half cycle. But for the positive half cycle, it will be open voltage, it will be open circuited, it will be reverse biased. तो ये तो ओपन हो जाएगा, तो जो भी आपको यहां पर वोल्टेज नजर आएगी वो यहां आउटपुट पर आ जाएगी. और जब ये, और ऑब्वियसली वो वाली वोल्टेज जो है वो यहां पर रेजिस्टर के थ्रू इट विल मेक अ कंप्लीट पाथ, एंड दैट वोल्टेज विल बी इनिशियली स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. जो पॉजिटिव आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा, और फिर जब ये रिवर्स बायस होगा, it will be forward biased and it will be zero voltage here. तो हम जब वो KVL अप्लाई करेंगे यहाँ पर, so this voltage, the capacitor will give you a complete cycle or twice of the voltage. वही जो voltage डबलर का काम था, exactly वही वाला इधर भी होगा. जिस तरह से पहले एक साइकिल जो था that was stored in the capacitor, the first cycle, and then the second cycle was available across V out. Is this clear? Can it make sense? नो मैम, समझ नहीं आ रही सही तरह से. अच्छा, वोल्टेज डबलर आपने समझा था? मैम, वोल्टेज जी मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट वोल्टेज रही है. डबलर में तो मैम रेजिस्टर नहीं, हाँ जी, मैं फिल्टर इस वक्त में था, किस में था? फिल्टर में. वो C और R था. वोल्ट अब भी आप इसको, मैंने कहा कि इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, इस रेजिस्टर को आप थोड़ी देर के लिए ओमिट कर दें, ठीक है. एंड मैम देन, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है. अच्छा एक मिनट, मैं स्विच करती हूँ दूसरे उस पे, नेटवर्क पे. ओके. अब आ रही है? यस मैम अब आ रही है. अच्छा, क्लिपिंग तो नहीं हो रही है? थोड़ी थोड़ी हो रही है मैम, इतनी ज्यादा नहीं, पहले से बेहतर है. अच्छा ठीक है, ओके. अच्छा, इसकी अगर हम ज्यादा डिटेल्स में ना भी जाएं, तो आपने ये देखना है कि व्हेन द डायोड इज कनेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, सो द एंटायर वोल्टेज, दिस होल waveform needs to be shifted up. बस ये याद रख लें, ठीक है, ये याद रख लें कि this whole needs to be shifted up. Right? Is this clear? यस मैम. यस मैम क्लियर. ठीक है. और मैं हल्का सा आपको ये बता देती हूँ कि you see,
अगर हम इसके यहाँ नेगेटिव हाफ साइकिल से लेते हैं जहां पर ये कंडक्शन कर रहा है, द डायोड विल कंडक्ट फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल. So it says that, for example, when this is positive, when this is negative and this is positive, अगर नेगेटिव हाफ साइकिल, हम फर्स्ट हाफ साइकिल को फिलहाल छोड़ देते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल एंड the negative half cycle, this is negative, this is positive. So obviously the diode will conduct करेगा, the diode will conduct. ठीक है. और चूंकि डायोड की अपनी आइडियल डायोड है, it does not have its threshold voltage, तो this will be zero and it will be shorted. ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि ये शॉर्ट है. मैं इसका यहां पर बनाती हूं एंड देन आई विल रिमूव इट. ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट लगेगा, लेकिन इसको आप फिलहाल आपने खुद ओमिट करना है क्योंकि मेरे लिए ये दोबारा फिर बनाना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, इसको आप समझेंगे एज इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट. तो द लूप विल बी कंप्लीट एंड द current will be, or the voltage will be stored in C for the negative half cycle. जब positive half cycle आएगा तो ये डायोड क्या हो जाएगा? मैम रिवर्स ओपन हो जाएगा. हाँ, ओपन हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, राइट, ओपन हो जाएगा. तो उसके बाद जो है यहां पे इट विल be as if there is no wire here. तो जो सारा का सारा कुछ होगा वो यहां पर हमारे पास जो सर्किट बनेगा, तो वो जो वोल्टेज अपेयर होगी अक्रॉस दिस टर्मिनल, वो अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि ये वाली वोल्टेज और जो इसका सेकंड हाफ आएगा दे विल बी एडेड. हमने यहाँ पर केवीएल भी अप्लाई किया था. मैं इसके बाद देखती हूँ अगर मेरे पास कोई वोल्टेज डबलर है तो मैं आपको वो वाला दिखा देती हूँ. ठीक है, बट द थिंग इज दैट इन दिस केस द everything that we need to do is we have to shift the voltage. The voltage will be doubled. ठीक है, ये आपने याद रखना है that the voltage will be doubled and it will be shifted like this. Does it make sense? कि ये जो है ये वोल्टेज यहां पर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी. इज दिस क्लियर? मैम एक क्वेश्चन है मैम, ये जो वेव फॉर्म है ये जीरो से स्टार्ट होगी ना, तो हमने ऊपर से ली हुई है, तो जीरो से आएगी. एक्चुअली जो हमारे पास यहाँ पर जिस तरह की भी वेव होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये वेव फॉर्म इस तरह से है, ऐसे आ रही है कि आपने यहां से लिया हुआ है. ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है कि आपने उसको यहां से ऊपर शिफ्ट करना है. तो फिर जब ये शिफ्ट होगी तो इट विल बी लाइक दिस. ये मैम यहाँ पे दोनों साइकिल्स क्यों आ रही है? क्लैंप हो रहे हैं ना मैम. ये तो अगेन एसी आ रहा है. एसी वन साइड पे आ रहा है. ये तो वो आ रहे हैं, इफ यू रिमेम्बर जिस तरह से हमारे पास वो आ रहे थे फुल वेव रेक्टिफायर में, दोनों साइड्स आ रहे थे. फिर हम इसको आगे वो करते हैं, मतलब इसको और हम फिर क्या कहते हैं उसको, स्टेडी डीसी करने के लिए फिल्टर्स. बिल्कुल वो भी हो सकता है, लेकिन इसमें ये है एक्चुअली this is used for different waveforms और especially it is used for the square waveforms. कि इसमें यूज हो रहा होता है और ये ऊपर नीचे हम कर रहे होते हैं. ज्यादातर it is used for the square waveforms. ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको लिया इसलिए है कि आप लोगों ने चूंकि साइनोसॉइडल पे बहुत सारा काम कर लिया हुआ है क्लिपर्स के साथ, तो इसलिए मैंने ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म ली है. लेकिन एंड से जाके मैंने फिर वो और वेवफॉर्म्स भी ली हैं ताकि उसमें आपको समझा सकूं कि हम और वेवफॉर्म्स भी किस तरह से ले सकते हैं. दैट इज द इशू.
मैम जी मैम ये एक साइकिल के लिए जो आउटपुट वेव फॉर्म आई है ये एक साइकिल के लिए है। जी, देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 साइकिल्स हैं, तो ये मैंने 2 साइकिल्स के लिए ड्रॉ किया हुआ है। जितने साइकिल्स आप यहाँ पर ड्रॉ कर लें उतने साइकिल्स के लिए इसको आउटपुट दे दें। अगर हमने इसको सिर्फ ऊपर किया है। सॉरी मैम ये जो इनपुट वेव फॉर्म है इसको हमने ओरिजिन से बिल्कुल ऊपर कर दिया है, तो ये आउटपुट वेव फॉर्म है। एग्जैक्टली वोल्टेज डिफर का फिर क्या काम है, मतलब उसने तो इधर कुछ किस तरह किया है वो तो समझ नहीं आ रही। वो डबल हो गई है। देखें यहाँ पर है इट इज 10 volts फॉर एग्जांपल, इट इज -10 volts एंड इट इज +10 volts. The peak to peak voltage, yes, remember one thing, the peak to peak voltage will not change. Peak to peak voltage will not change. This will not change. ठीक है, तो यहां देखें, if it is -10 and if this is 10, so this will be 10 to 10, 10 plus 10, तो it will be 20. और यहां देखें it is 0 to 20, ये इसका एक मिडिल लेवल होगा, ठीक है, this one. ये राइट, और ये 0 होगा और ये बन जाएगा 2 VM. This will be 2 VM. This will be 2 VP. V peak and V peak. तो ये peak to peak जो वोल्टेज है it will not change. ठीक है, आप इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स में ना जाएं, आप सिर्फ और सिर्फ इसके आउटपुट पे अगर कॉन्सेंट्रेट कर लें तो वो ये होगा कि आपने जो भी यहाँ पर voltage होगी, if it is a positive clamper, so the entire voltage will be shifted up. If it is a negative clamper, the entire voltage will be shifted down. ठीक है, this will be shifted down or it will be shifted up. अब अगर is this clear? अगर हम इसको सिर्फ इतना ही सिंपल रखें, मैंने इसीलिए यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्लाइड थी, मैंने यहाँ पे शिफ्ट का वर्ड यूज किया है, that it shifts the signal up or below the reference voltage level. लेकिन जब मैंने actually the definition of the clamper is that it adds a DC level to the input alternating voltage. ठीक है, the clipper adds a DC level to the input voltage. लेकिन आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, आपकी आसानी के लिए, it is to shift the voltage up or below a certain level. मैम ये पर ना, तो हम लोग अगर कोई रबिश टाइप के सिग्नल्स हो तो वो क्लिप करते थे ना, तो क्लैंपिंग का क्या फायदा है, मतलब इसको क्यों इस तरह करते हैं? आते हैं, ये वोल्टेज मल्टीप्लायर के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर आपको एक आध जगह पे कम्युनिकेशन सिस्टम में देयर इज अ पीक डिटेक्टर, अ रेक्टिफायर व्हिच टेक्स द एसी इनपुट सिग्नल्स, उसमें आपको ट्वाइस ऑफ द पीक वैल्यू चाहिए होती है, सो यू क्लैंप द वोल्टेज फर्स्ट एंड देन यू अप्लाई इट टू द पीक डिटेक्टर। ये उसमें यूज होगा, कम्युनिकेशन में अक्सर यूज होता है, डिस्टॉर्शन को रिमूव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और मतलब एक और मैम, जी मैम अगर कम्युनिकेशन में अगर आवाज़ सही तरीके से नहीं पहुंच रही उस पर्टिकुलर जगह तक ना, तो उसके लिए फिर हम रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्लैंपर यूज करते हैं। रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर के उसमें सर्किट में आप इसको देते हैं, डबल उसमें हमें चाहिए होती है। उसका फर्दर जो है वो डिटेल मैं फिर आपको बता दूंगी अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो, कि पीक डिटेक्टर जो है दैट इज अ सॉर्ट ऑफ द रेक्टिफायर, ठीक है। बट उसमें हमें जो सिग्नल इनपुट चाहिए होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ द पीक। सो
you can say that you use a voltage doubler in the before the peak detector, because this clamper can be used as the voltage doubler. ये हम जरा इसका सारा आउटपुट करते हैं, मैं फिर वो पिछले लेक्चर पे देखती हूँ, अगर मेरे पास पड़े हुए जो कि मैंने आपको ईमेल भी कर दिए हुए हैं, तो उसमें मैं आपको फिर वोल्टेज डबलर का एक दफा और जो है वो सारा कर दूंगी, अदरवाइज फिर हमारा अभी के लेक्चर का बहुत सारा टाइम चला जाएगा। मैं एंड में आपको वोल्टेज डबलर एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा। जी मैम लास्ट में कर दें, अभी आप लेक्चर करें। अभी सिर्फ आप इसकी जो इंटरनल जितना कुछ कर रहा है ना, वो वैसे मैं अवॉइड करना चाह रही थी, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों अभी आपको बता दिया, इसलिए कि इट confuses you, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि we are trying to clamp the output to one side of the reference voltage, बस ये हमारा मकसद है, ठीक है। तो और जिस तरह से क्लिपर्स का था, to clip some of the portion, this is to shift one side of the to shift the signal to one side of the रेफरेंस लेवल। अब रेफरेंस लेवल ये भी है और रेफरेंस लेवल अगले भी हम देख लेते हैं। लेट्स सी, ओके। नाउ अगेन, सबसे पहले यू विल हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच साइड शुड इट शिफ्ट। कौन सी साइड पे ये शिफ्ट करेगा? इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड। इसको आपने एरो हेड लेना है, ये के को, डायोड के एन टर्मिनल को, एंड यू विल सी इट इज शिफ्टिंग अप और शिफ्टिंग डाउन। अच्छा, अगेन नाउ यू सी, अगेन यू हैव इंट्रोड्यूस्ड अ बायसिंग लेवल। जब ये बायसिंग लेवल आ जाएगा तो आपका जो एक्सेस है वो चेंज हो जाएगा। सो दिस इज अ पॉजिटिव, सो इट विल बी अबव द जीरो लेवल। तो पहले चूंकि जब हमने यहाँ पे बैटरी वोल्टेज नहीं इंट्रोड्यूस की थी, डीसी लेवल नहीं इंट्रोड्यूस किया था, कोई बायसिंग नहीं थी पिछले डायग्राम में, तो ये जीरो इसका लेवल था। लेकिन जब हमने बायसिंग इंट्रोड्यूस कर दी, सो इट्स लेवल हैज चेंज्ड, इट्स लेवल इज दिस वन। नाउ the output voltage will clamp to the DC level. ये है वो, it adds a DC level to the input voltage। कि अगर यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव के इस पोर्शन से क्लैंप हो जाएगा, बिल्कुल जैसे क्लिपर की तरह हमने किया था, ठीक है। कि हम ये एक लेवल इंट्रोड्यूस कर देते थे और या उसके ऊपर या नीचे हम उसको क्लिप कर देते थे। यहाँ ये लेवल हम इंट्रोड्यूस करेंगे एंड डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द डायोड वी विल क्लैंप द वोल्टेज। यहाँ पर क्लिपिंग नहीं होगी, यहाँ क्लैंपिंग होगी, इसके साथ अटैच करना होगा, इसके साथ हमने इस तरह से क्लैंप कर देना है, ये किसी एक रेफरेंस लेवल के साथ, जैसे ऊपर से या नीचे से हमने वेव फॉर्म को पकड़ लिया हो उस पर्टिकुलर डीसी लेवल के साथ। इज दिस क्लियर? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. No, ma'am. अच्छा, next में देख लेते हैं। You see, now this is again, which direction is this? The direction will be Negative. positive. मैम पॉजिटिव होगा, लेकिन ये एक्सिस लाइन से नीचे आएगा। Exactly. Axis थोड़ा सा नीचे होगा, तो उसकी वजह से some of the portion like it will be clamped to this level. This is the level. लेकिन उसके ऊपर मैम क्योंकि हमारे पास एंटरिंग जो है ना जी, जो हमारे पास बैटरी का एंटरिंग है वो नेगेटिव है ना, तो इसलिए वो नेगेटिव पे आएगा, होगा पॉजिटिव पे लेकिन नेगेटिव। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली, वेरी गुड। क्योंकि ये वाली मैंने इसलिए साथ में बातें नहीं बताई हैं क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस इन डिटेल इन द क्लिपर्स। दैट इज व्हाई आई एम जस्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि ये अब आपको पता है कि वही वाली बात कि दिस इज कनेक्टेड टू द नोड, तो ये वाली साइड जो है ये ऊपर है और इसने पॉजिटिव की तरफ क्लैंप करना है, वही वाली बात है जो कि हमने क्लिपर्स में की है। लेकिन टू मेक इट सिंपलर for the clamper, I say if this is upwards, it will shift up. If this is downwards, it will shift down. ये आसानी के लिए है।
ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपको आसानी से समझने के लिए कि आप सर्किट को देखें और आपको ये पता चल जाए कि ये क्लैंपर है और इसने ऊपर शिफ्ट करना है कि नीचे शिफ्ट करना है। अब अगर वहां पर ये डीसी लेवल मौजूद होगा, ठीक है, तो ये आपका रेफरेंस लेवल बन जाएगा। अगर वहां पर ये डीसी लेवल मौजूद नहीं है तो 0 ही आपका रेफरेंस लेवल रहेगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है। Yes. और अगर उसमें करंट जो है वो पॉजिटिव से एंटर हो रहा है तो आपने उसको पॉजिटिव लेवल बनाना है। अगर करंट जो है वो नेगेटिव से एंटर हो रहा है तो आपने उसको नेगेटिव लेवल बनाना है। दैट्स इट, दिस इज द पॉजिटिव क्लैंपर। यू हैव डन पॉजिटिव क्लैंपर विद नो बायस, पॉजिटिव क्लैंपर विद पॉजिटिव बायस, पॉजिटिव क्लैंपर विद नेगेटिव बायस, ये तीनों आप कर चुके हैं। अब इसी को ही अगर हम रिवर्स कर दें, इस डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स कर दें जस्ट लाइक दिस, तो आप देखें कि यहां पर आपका कोई डीसी लेवल नहीं है, 0 ही होगा। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डायोड? दिस वे। वो डाउनवर्ड है तो शिफ्ट भी डाउनवर्ड होगा। एग्जैक्टली। ये आपने इसके साथ ये एरो बना लिया करें तो एकदम से आपको एरो से ये पता चलेगा कि इट हैज टू शिफ्ट डाउन, शिफ्ट अप। There is, whether there is some voltage present or not. If the voltage is present, so if the voltage is not present, the reference is 0 level. If the voltage is present, just draw that level. ठीक है, तो ये शिफ्ट हो गया नीचे। अब देखें शायान, जो आपने कहा था कि ये वाली हमारे पास अगर वेव फॉर्म आ रही है तो हम इसको ऐसा ही बनाएंगे, जो वेव फॉर्म आ रही है वो इधर आ जाएगी। ठीक है, उसको आपको सिर्फ ऊपर नीचे करना है आउटपुट के लिए, और आपसे यही डिमांड किया जाएगा कि यू हैव टू ड्रॉ द आउटपुट। आपसे अक्सर ये फिनोमेना नहीं मांगा जाता। व्हेन एवर यू आर आस्क्ड टू डू सम क्वेश्चंस, जहां पर भी आप देखें तो उसमें यही होता है कि ड्रॉ द आउटपुट ऑफ सच एंड सच क्लैंपर और अ क्लिपर। आपको फिनोमेना तो आपको मालूम होता है, जैसे क्लिपर्स का आपको फिनोमेना मालूम हो गया है, क्लैंपर्स का फिनोमेना के जो कैपेसिटर है दैट स्टोर्स वन साइकिल एंड when and for the other it adds it up to the previous one. ठीक है, the previous one is added to the current cycle. तो बेसिकली वो दोनों को एड अप कर रहा, इस एड अप नहीं कर रहा होता, एक को स्टोर कर देता है और दूसरे के वक्त में उसके साथ वो मिला के तो डबल करके उसकी वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा होता है। एक साइकिल को ये स्टोर करेगा और दूसरे साइकिल पे ये पुराने वाले को जो उसने स्टोर किया है जो उस वक्त आ रहा है, दोनों को एड अप करके आपको यहां पर दे देगा। और ये डिपेंड करेगा कि ये जो डायरेक्शन है ये नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करे डायोड पे ना, डायोड के डायरेक्शन पे डिपेंड करके ये क्लिपर पॉजिटिव और नेगेटिव को। जी 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 बिल्कुल, ये साइकिल की बात नहीं कर रही। देखें, डायोड जब कैपेसिटर होगा ना, या डायोड का काम है कि वो एक साइकिल को अलाउ करेगा, एक को नहीं करेगा। अब अगर हम इधर ये कैपेसिटर नहीं लगाते हैं तो ये तो सिर्फ एक ही डायोड हमें वो देता रहेगा, आउटपुट देता, एक ही साइकिल हमें देगा, दूसरा साइकिल तो हमारे पास आएगा ही नहीं। वो तो फिर क्लिपिंग होती जाएगी, वो तो फिर वो रेक्टिफिकेशन की तरह का काम हमारे पास होता जाएगा। एक साइकिल देगा, एक नहीं देगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमें एक साइकिल जो है, एक साइकिल भी हमें, जो फॉर एग्जांपल नेगेटिव साइकिल तो हमें नेगेटिव साइड पे मिले ही मिले, लेकिन हम कहते हैं कि पॉजिटिव भी हमें नेगेटिव में मिले। तो हम पहले पॉजिटिव साइकिल को इसमें स्टोर करेंगे और जब नेगेटिव आ रहा होगा तो वो दोनों को मिला के हमें एक साइड पर देगा। ये फिनोमेना आपको उसमें मल्टीप्लायर में इंशाल्लाह बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। वो हमने किया था, लेकिन आई डोंट नो वेदर यू पीपल हैव डन इट प्रॉपरली और नॉट। वो हमने बहुत वैसे जल्दी जल्दी में किया था। मैं एक दफा और आपको करवा देती हूँ अभी आज ही, राइट। सो देयर आर 3 things that you need to remember. The direction of the diode. जी मैम, ये डायोड हॉरिजॉन्टल साइड पे आ सकते हैं या नहीं? नहीं, क्लैंपर में नहीं आ सकता, क्लैंपर में नहीं आ सकता। ये वर्टिकली होगा लेकिन डायरेक्शन इसका अप एंड डाउन हो सकता है। हो सकती है, इसके साथ बाइसिंग ऐड हो सकती है। ठीक है, फिर आपने देखना है, सबसे पहले यू हैव टू, सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर इज
whether it is a clamper or it is a clipper. If there is a capacitor, straight away go to the clamper, and it means that the waveform needs to, the output waveform needs to shift down or upwards. ये काम करेगा. सबसे पहले आपने देखना है कैपेसिटर है कि नहीं है. कैपेसिटर नहीं है तो क्लिपर के आउटपुट्स दें. अगर कैपेसिटर मौजूद है तो फिर शिफ्टिंग के आउटपुट्स दें, शिफ्ट अप शिफ्ट डाउन, ये आपने करना है. देन सी द डायरेक्शन ऑफ द डायोड. डायोड की डायरेक्शन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि कहां से क्लिपिंग होनी है, कहां पर क्लैंपिंग होनी है. ठीक है, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द डायोड. जो यहाँ पर जो डीसी बायस होता है, वेदर दैट इज 0, दैट इज -V, दैट इज +V, दैट डिटरमिन्स हाउ मच. दिस सेज वेयर फ्रॉम एंड दिस सेज हाउ मच. ठीक है, तो अगर यहाँ पर वोल्टेज है तो आप यहाँ पे रेफरेंस लेवल ऐड करेंगे ऊपर या नीचे 0 के, और अगर नहीं है तो 0 विल बी कंसिडर्ड एज द रेफरेंस लेवल. तो यहां पर क्या होगा, जस्ट बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी डीसी बायस हियर, डीसी वोल्टेज हियर, सो the output waveform will be shifted down and it will be attached to the 0 level, the reference level. If we have a bias, for example, this is the positive, तो ये डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स. तो क्या होगा, it will be shifted down from which level, from this level. And where will this lie? It will lie here, +V यहां आ जाएगा और +V से नीचे होगा. अब आपका रेफरेंस लेवल जो है वो 0 नहीं रहा. जब भी यहां पर आप वोल्टेज लगाएंगे, यहां पर माइनस या +V ऐड करेंगे, तो जो वोल्टेज है वो 0 लेवल से हट जाएगी, उसका लेवल ये हो जाएगा. जो भी यहां पर डीसी वोल्टेज है उसका अब नया जो रेफरेंस लेवल है दैट इज V. अब डायोड की डायरेक्शन बताएगी कि ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये इस रेफरेंस लेवल के ऊपर जाएगा या इस रेफरेंस लेवल के नीचे जाएगा. Now the direction of the diode here tells that it will go below the reference level, and our new reference level is this +V because we have added the battery here. If there were no battery, then it would have been simply the 0 level. Lekin just because we have an added reference level, so the diode will shift the entire waveform below this battery. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next is, this is the reference level. ठीक है, यहां पर रेफरेंस लेवल है, ये है. ठीक है, अब ये देखें कि इट्स न्यू अगेन. व्हाट इज द डायरेक्शन? Downward. Downwards. ठीक है, so it will shift downwards, but to which level? This level. Minus -V. नेगेटिव पोटेंशियल. माइनस, वेरी गुड, -V आ जाएगा और -V से नीचे शिफ्ट होगा. ठीक है, अगर मैं इसी में डायोड की डायरेक्शन चेंज कर दूं फिर क्या होगा? मैं ऑपोजिट कर दूं, अपवर्ड कर दूं, फिर -V क्या से होगा? अपवर्ड होगा, -V से अपवर्ड होगा, -V से होगा लेकिन ऊपर की तरफ होगा, पॉजिटिव. ऊपर की तरफ होगा. गुड. सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर. ठीक है, समझ में आ गया? ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं क्लैंपर्स की, कि क्लैंपर्स में यू हैव टू शिफ्ट द वोल्टेज अप और डाउन अ रेफरेंस लेवल, एंड द रेफरेंस लेवल कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. मैं यहां पर लिख देती हूँ जहां पर हमने सबसे पहला रेफरेंस लेवल यूज किया है. हियर आई विल राइट इट डाउन. द रेफरेंस level can be 0,
0 volts, positive V, or you can say positive or negative. ठीक है? ये आपका ये आ जाएगा. इज दिस क्लियर? तो ये सिर्फ एक नोट है आपके लिए कि द रेफरेंस लेवल कैन बी, दिस कैन बी 0 volts, positive और negative voltage. Positive और negative DC आप कह दें, और नेगेटिव पॉजिटिव बायस इसको कहते हैं. ठीक है मैम जी. मैम जिस तरह हम क्लिपर में करते थे कॉम्बिनेशनल क्लिपर ना, तो मतलब वो दोनों एक साथ आते थे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे भी ऐसा होगा या नहीं? नहीं, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि हम अगर कॉम्बिनेशन चाहिए है तो वो तो ओरिजिनल है ना हमारे पास. ये जी इसमें तो क्लिप हो नहीं रहा ना, इसमें तो सारी की सारी यहाँ पर भी होगी, सारी की सारी वोल्टेज होगी. तो आपके पास ये जो है ये कॉम्बिनेशनल फॉर्म में ही चल रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चल रहा है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो करना है दैट इज द शिफ्टिंग, एडिंग अ डीसी लेवल टू द आउटपुट. ओके ठीक है, सिर्फ ये होगा. सो आपने ये देख लिया कि इट इज अ पॉजिटिव क्लैम्पर विद नो बायस, विद positive bias. This is the positive reference level, shifted up. Negative reference level, shifted up. This is no bias, shifted down. Positive bias, so positive reference level, shifted down. Negative reference level, shifted down. ये कुछ डायग्राम्स हैं, यू कैन सी दिस. ये मतलब मैंने जो मिली हैं एग्जैक्टली जिस तरह से वो मैंने यहाँ पर डाल दी हैं कि अगर आपको वहां से नहीं समझ आ रही और यहाँ से समझ आती है तो आप लोग ये वाली भी यूज कर सकते हैं. ये सारा का सारा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा आज ही इंशाल्लाह. सो दिस इज अ पॉजिटिव क्लैम्पर विद नो बायस, पॉजिटिव क्लैम्पर विद पॉजिटिव बायस, पॉजिटिव क्लैम्पर विद नेगेटिव रेफरेंस, विद नेगेटिव बायस वोल्टेज. ये देखें यहाँ पर ये रेफरेंस वोल्टेज जो है दिस इज बेसिकली द बायसिंग वोल्टेज. ये पॉजिटिव की फॉर्म्स हैं, दीज आर द नेगेटिव क्लैम्पर्स. ये दिस इज नेगेटिव क्लैम्पर विद नो बायस, नेगेटिव क्लैम्पर विद पॉजिटिव बायस, नेगेटिव क्लैम्पर विद नेगेटिव बायस. ठीक है, और आप ये देखें इन्होंने यहाँ पर ये ड्रॉ नहीं किए हुए, इन्होंने ओरिजिनल ये लेकर और उसका यहाँ से ये गैप शो कर रहे हैं. दे आर शोइंग जस्ट द गैप, ये यहाँ से. और हमारे पास भी अगर देखें ये दिस इज द गैप. नेगेटिव क्लैम्पर विद नेगेटिव बायस, तो आपका 0 से नीचे शिफ्टेड होगा. ठीक है, इज दिस क्लियर? वहां तक सब क्लियर है? पीछे यस मैम. ओके, अभी मैं आपको जी मैम ये आर का क्या फंक्शन था यहाँ क्लैम्पर्स में? किसका? आर एल R जो- लोड रेजिस्टेंस. वो तो लोड रेजिस्टेंस है ना. फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको कहा है कि अगर हम इसको किसी के इनपुट पे यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वहां पर जो पीक टू पीक डिटेक्टर जिसको मैं कह रही हूँ जो कि हमें चाहिए है, तो उस ये जो RL होगा दिस विल बी बेसिकली द लोड ऑन द क्लैम्पर. वो पीक डिटेक्टर जो है वो यहाँ पर एकोमोडेट हो जाएगा, इस जगह पे डायोड के अक्रॉस वो लग जाएगा. RL, if you remember, मैंने क्लिपर्स में आपसे कहा था कि whenever you use the load resistance, तो load resistance or these components, these circuits are basically not used independently. ये बिल्कुल independent circuits नहीं होते, they are a part of the complex circuitry. तो जो कुछ इनके ऊपर लोड आ रहा होता है, they are input to another circuit or they are the output of some previous circuit. तो मतलब ये दरमियान में कहीं यूज हो रहे होते हैं, इनको इनपुट मिल रही होती है
और फिर ये वो उस इनपुट को अकॉर्डिंगली जनरेट करके दे गिव इट टू सम अदर सर्किट्स। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि पीक डिटेक्टर है, तो पीक डिटेक्टर कैन बी यूज्ड एज द लोड रेजिस्टेंस। ये बिल्कुल सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप एक रेजिस्टर उठा के और इसके ऊपर डाल दें, वो लोड होगा जितना, इसीलिए इसको लोड रेजिस्टेंस कहते हैं कि लोड पे कोई सर्किट भी हो सकता है, लोड पे आप 2-3 चीजें भी इकट्ठी कर सकते होते हैं। फॉर एग्जांपल द लोड रेजिस्टेंस, अब जैसे आपकी इस वक्त भी अगर आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, जिस जगह पे बैठे हुए हैं, वहां लाइट्स और फैंस और ये जो ट्यूबलाइट्स वगैरह हैं, एनर्जी सेवर्स हैं, ये सब कुछ अगर एक साथ एक ही बटन पे ऑन हो रहा है तो ये सारा का सारा मिल के लोड बनाएगा, सिर्फ एक इनमें से लोड नहीं होगा। दिस इज नॉट अ सेपरेट इंडिपेंडेंट आर, इट इज अ लोड, रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर लोड ऑन द सर्किट। इज दिस क्लियर? तो जैसे मैंने आपसे कहा कि कम्युनिकेशन में इट इज यूज्ड टू गिव twice of the input waveform, the half waveform. So for that matter, we clamp it to one side of the reference voltage and then we provide it to the peak detector. Peak detector के लिए आपको twice of the voltage जो है peak value 2 VP आपको चाहिए होता है। आप उसको पहले clamp करके 2 VP करते हैं और फिर उसको आप input करते हैं to another circuit, and that complete circuit, whatever its load is, whatever its resistance as a circuit is, that is called the load resistance. Is this clear? Yes, ma'am. Or should I repeat? Is this clear to everyone? Clear. ठीक है कि मल्टीपल जो वहां पे जो देखें, और दूसरे ये याद रखें, every device, every component has its resistance. And what is that resistance? Resistance is the opposition to the flow of current. For example, अगर जो डायोड आप यूज कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली भी अगर कर रहे हैं, it has certain resistance. RD उसको कहते हैं, ठीक है? और ये और दूसरे एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है, मैं उस डिटेल में गई नहीं हूं, C और R का कॉम्बिनेशन टॉ, जो RD होता है वो रेजिस्टेंस, और दूसरे ये जो वो है क्या कहते हैं क्लैंपर में, ये अच्छा आपने एक चीज पूछ ली, जब भी कैपेसिटर और रेजिस्टर होते हैं तो वहां पर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही होती है, ठीक है? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही है, तो जो इसके जो चार्जिंग टाइम है दैट शुड बी मच मच ग्रेटर देन द डिस्चार्जिंग टाइम, ठीक? इसमें से वन ऑफ देम इज मच मच ग्रेटर देन द अदर, और उस वक्त में ये फिर क्लैंपिंग का काम करेगा, otherwise it won't, it will be discharged, ठीक है? तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में देयर इज द डिफरेंस, और उसमें उसी की वजह से ये क्लैंप कर सकता है, वरना जब भी C होगा और साथ में R होगा तो वहां डिस्चार्जिंग जरूर होगी। और ये RC जो होता है ये टाइम कांस्टेंट होता है, मैं इसकी बहुत डिटेल में इसीलिए नहीं गई हूँ कि वहां पे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अदरवाइज C and R will determine how much time will it require for the charging and how much time will it require for the discharging, ठीक है? ये वाला पॉइंट जो है ये मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि जो इनमें से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम का, टाइम कांस्टेंट्स का आपस में क्या रिलेशन है, आई राइट इट डाउन और ये फिर मैं आपको भिजवा दूंगी, राइट? ओके, सो in this case यहां तक बात क्लियर है, ठीक है? Is that the answer to your question? या मैं और एक्सप्लेन? ठीक है, No, thank you, ma'am. okay, so square waveform, okay, types of the waveforms, आपको ये बात तो मालूम है ना, ये वाली सारी टाइप्स तो यकीनन आप लोगों को पता होंगी। सॉटूथ का आई एम नॉट श्योर कि ये आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन ये वाली तीनों तो आपको मालूम हैं।
मालूम है सबको? यस मैम। और सॉटूथ जो है ये आपको मालूम है? नो मैम, मैम ये पहली दफा देखी। नो मैम। कहीं से आवाज आई है वो अब एक्चुअल स्टूडेंट हैं या उनके पास जो बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी ने कहा है यस मैम। यस मैम, क्लासिकल मैकेनिक्स। जी मैम, देखा है मैम। अच्छा, क्या ये इसका स्पेशलाइज्ड फॉर्म है कि मैम ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म है? मैम जी जी मैम कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं क्लास लेने के लिए, मैम जरा उनको अलाउ कर दें। और अभी तो मेरे पास ठीक है, ऑलराइट। सो ये आपने जरा फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर वेवफॉर्म एंड द सॉटूथ वेवफॉर्म। इनमें से एक जो है वो दूसरे की मॉडिफाइड फॉर्म है, सो यू विल हैव टू सर्च फॉर दिस। इनमें से बेसिक कौन सी है और मॉडिफाइड कौन सी है, ये जरा मुझे नेक्स्ट क्लास में आपने कल मुझे बताना है, ट्रायंगुलर और सॉटूथ। मैम आज के लिए काफी है। कि ट्रायंगुलर बेसिक है, इसी को मॉडिफाई करके, क्योंकि ये इसकी जो शेप से पता चल रहा है। बिल्कुल स्ट्रेच किया हुआ है तो ये सॉटूथ वेव। सॉरी, स्ट्रेच किया हुआ है ट्रायंगुलर वेव फॉर्म को, तो नीचे basically all this is depending upon the ramps, ये ramps है। सॉटूथ मैम ये मॉडिफाइड है सॉटूथ, क्योंकि ये थोड़ा सा बेंड हुआ पड़ा है। बिल्कुल, एक्चुअली why do we call it a sawtooth? मैम ये नोकीले दांत क्या होते हैं उन्हीं की तरह से? नहीं तो नोकीले दांत तो ये है। लेकिन मैम ये जो सॉटूथ है ये तो मैम एक ट्रायंगुलर है और एक ये जो सॉटूथ है ना मैम, ये थोड़ा सा लाइक बेंड फॉर्म ऑफ अ पिरामिड, अगर आप एक चीज को देखें। नहीं, अगर आप ये देखें तो basically it's a right angle triangle and this can be a isosceles triangle मैम और दोनों ट्रायंगुलर है, एक इक्विलेटरल है और दूसरा राइट एंगल। ये इक्विलेटरल भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है ना, ये आइसोसेलेस भी हो सकता है। यस मैम। इसका मतलब जी क्या मैम। है? यही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सॉटूथ इसको क्यों कहते हैं? इसका ये जो स्क्वायर है इसका मतलब ये है कि इसमें जो वेरिएशन है वो स्क्वायर फंक्शन के साथ है, और ये सॉटूथ इसका क्या मतलब है? यही मैं पूछ रही हूँ कि इसको क्यों कहते हैं? मैम मेरी अटेंडेंस लगवा दे जरा, मेरी मोबाइल में चार्ज खत्म हो रही है। ये कौन है? आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली आ गई है, आपकी आ चुकी है। थैंक यू मैम, शुक्रिया। हाँ, ओके। ये वाली बात कि इट इज कॉल्ड अ सॉटूथ। सॉटूथ बेसिकली जो जिसको हम आरा बोलते हैं, आरा काटने का, जी मैम यस। ठीक है, दैट इज बेसिकली सॉ। और उसके जो ये दंदाने जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। आरा की जो बेस लाइन होती है दैट इज लाइक दिस, एंड वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टूथ। ये दीज आर टीथ ऑफ अ सॉ, so this is the tooth, इसलिए इसको कहते हैं सॉ टूथ बिकॉज इट लुक्स लाइक अ सॉ टूथ ऑफ दैट सॉ। आरा जिसको बोलते हैं काटने के लिए, लकड़ी वगैरह काटने के लिए जो आरा यूज किया जाता है ना, उसके टीथ की तरह से ये लगता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ सॉ टूथ। अगर आप इसमें से ये रेफरेंस हटा दें, सो इट दिस पर्टिकुलर tooth is just like a sawtooth, ये वाला, इसलिए इसको sawtooth बोलते हैं। This is a specialized form of the triangular wave, but why is it called a sawtooth? Because it looks like the tooth of a saw. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने ये कुछ आपको होमवर्क दिया है कि ये आप लोग कर लें या अभी करते हैं क्लास में? मैम कर लेंगे।
ये identify the clamper. Which clamper is this? पॉजिटिव Upward. Positive. Positive. नॉन-बायस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम नॉन-बायस्ड है, ठीक है? और उसके बाद पॉजिटिव है। Non-biased positive. above जी above the reference. Whole waveform will be shifted above. Level कहाँ होगा? यहाँ पर होगा? मैम above. Yes Above. मैम। Above में there is no It's voltage. और non-biased. मैम नॉन-बायस्ड होगा। तो यहाँ पर non biased है, so it will be attached here. ठीक है? ये Above no ma'am. मैम ऊपर की तरफ होगा। It's above है। Upward. Yes ma'am. ठीक है? This will be the output. और इसको आइडेंटिफाई भी करेंगे, इसका नाम भी लिखेंगे। एंड दिस वन, ये है पॉजिटिव। व्हाट टाइप ऑफ क्लैंपर इज दिस? मैम ये Negative. नेगेटिव है, डाउनवर्ड Positive होगा downward. लेकिन प्लस Positive वी से downward. ऊपर होगा। वेरी गुड। इट इज Plus 3 डाउन। से नीचे A की तरफ positive downward. और यहाँ पर जो +3 होगा, इट विल बी हियर। ठीक है? एंड क्या ये ठीक है? Yes, ma'am. ma'am. Yes ma'am. और ये जो है दिस इज 0। ओके, ये कौन सा क्लैंपर है? मैम जी मैम ये जो हम +3 वोल्ट्स लिख तो इसमें तो Above हमें ग्राफ पेपर तो जरूरी negative. होगा क्योंकि जरूरी नहीं है। उसके अगर बाद आप करना चाहें, देखें, अगर आपको ग्राफ पेपर तब चाहिए होगा व्हेन यू रियली वांट टू मेक अ सर्किट। अभी तो आप एक वो दे रहे हैं, एक आइडिया दे रहे हैं कि हाउ विल इट लुक लाइक। अगर आप इस पे भी कितने सारे हम क्वेश्चंस करते हैं जो कि ग्राफ पेपर बेस्ड होते हैं, बट वी कैन डू इट ऑन द सिंपल पेपर। लेकिन जब उसकी एक्चुअल मेजरमेंट्स आती हैं तब हमें ग्राफ पेपर और बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी उसकी घर की फाउंडेशन रख रहे हैं, तो आप अगर उसको पेपर पर भी शो कर दें कि यहाँ पर ये होगा, टू गिव द आइडिया how will the foundation, how will the map of the house will like it will look like। लेकिन जब आप एक्चुअल उसको वो करना चाहेंगे तो तब आप एक प्रॉपर मैप बनाते हैं, उसका एक प्रिंट बनाते हैं, और फिर उसके बाद आप उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाते हैं। सिमिलरली व्हेन यू नीड इट फॉर द एक्चुअल पर्पस, yes, you do need a graph paper, you do need precise measurements। लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझे सिर्फ इसका आइडिया दें कि ये ऊपर होगा, नीचे होगा, कितना ऊपर होगा, कितना नीचे होगा, तो आप यहाँ पर भी इसके स्केल्स बना सकते हैं, प्लेन पेज पर भी। बट इफ यू वांट टू डू इट ऑन द ग्राफ पेपर, गो अहेड, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट। अगर कोई बनाना चाहता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो जरूर करे, लेकिन अगर कोई नहीं करना चाहता, इवन देन इट इज ओके। आई जस्ट वांट टू हैव द आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है? तो इस केस में इज दिस मैम? तो अगर नाउ यस मैम, दिस इज अ पॉजिटिव क्लिपर ये एंड ऊपर होगा और माइनस से नीचे होगा थोड़ा सा नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव। ठीक है? और इसको अगर हम थोड़ा सा और भी नीचे करते हैं, and it will be -4।
This is -4 and this one will be 0 volts. ठीक है, और ये वाली वेव फॉर्म कहाँ आएगी? above, ये यहाँ पर, ठीक है? Is this clear? yes ma'am. And this is the end of the topic के applications. ये देखें, अगर आपको याद हो तो ये है voltage doubler. Do you remember this? ये किसको याद है? यस मैम, मुझे याद है मैम। यस मैम। ठीक है, अब उधर से अगर आप वहां से वो रेजिस्टर हटा दें, क्लैंपर में से आप ये जो है इतना पोर्शन हटा दें, ये तो क्या ये क्लैंपर नहीं है? ये पोर्शन, ठीक है। पॉजिटिव जब आएगा, यस मैम, तो वोल्टेज डबलर रोटर it will be forward bias. जी, it will be forward bias, right? ये forward biased होगा और it will be shorted, और सारा का सारा जो वोल्टेज है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? That will be stored in the capacitor. In the forward biased, it will be shorted and the first half cycle will be stored in Vm. In the second half cycle, जो कि negative होगा, it will be reverse biased. If it is reverse biased, it will be open. तो ये वाली वोल्टेज और ये वाली वोल्टेज यहाँ पर एड अप हो जाएगी ना। ये वोल्टेज तो आ रही है, and just because there is no path, so the same voltage will appear here, but there is already some voltage, the positive Vm stored in C1. So this Vm plus this Vm will appear here in the open circuit. अब मेरी बात समझ आई आपको? yes ma'am. अब यहाँ पर एक वोल्टेज, या अगर इसको जैसे हम कह रहे हैं कि द क्लैंपर सर्किट इज यूज्ड इन द वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्टेज डबलर, वोल्टेज ट्रिपलर, इसमें ये यूज होगा बिकॉज यू आर यूजिंग अ कैपेसिटर एंड अ डायोड, अ कैपेसिटर एंड अ डायोड, अ कैपेसिटर एंड अ डायोड। तो ये अगर एक ये सेट होगा, ये वाला एक मेश होगा, सो इट विल बी अ वोल्टेज, ये जो है दिस इज एक सेट इज अ क्लैंपर, दो सेट्स में ये दो क्लैंपर्स यूज होके, सो दिस विल बी अ वोल्टेज डबलर यहां पर, और ये वाला सेट और ये वाला सेट ये यूज होके आपको वोल्टेज ट्रिपलर देंगे, ठीक है, बिकॉज द वोल्टेज हियर and the voltage here will give you Vm plus 2Vm. The voltage here will give you twice of the voltage. ठीक है, ये आपको 2Vm देगा, and you need a voltage clamper to make these triplers or the multiplier, simply the voltage multiplier. लेकिन ये बात समझ आइए कि यहां पर when this is open circuited, in the first case it is short circuited, so the voltage will appear here. When it is open circuited, so the other voltage will appear, the open voltage or the total voltage will appear at the open terminals. So this Vn and this Vm, they will be like the voltage, the input voltage, and Vc1. These will be added to appear at the open terminals. Is this clear to everyone? yes ma'am. Yes, ma'am. तो अब अगर हम उधर पीछे जाके देखें किसी भी सर्किट को, इसको ही ले लेते हैं, या इसका जो ये है विद नो बायस, आप देखें
कि यहां से पॉजिटिव पे ये क्या करेगा, इट विल बी फॉरवर्ड बायस्ड, इट विल बी शॉर्ट सर्किटेड एंड द वोल्टेज विल बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, राइट। ये तो स्टोर हो गई। अब हमने क्या करना है कि यहां से जो नेगेटिव साइकिल आ रहा है ये ओपन हो जाएगा, तो नेगेटिव वोल्टेज और द वोल्टेज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, these will be added and they will appear at this terminal, the output यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। और ये the other use is in the communication system, ये वही वाला है जो मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि it's a clamper which is used with the peak detector to produce twice of the voltage at the output of the peak to peak detector। ये इसका वो है कम्युनिकेशन में, ठीक है। एंड दिस इज ऑल। अब मुझे ये बताएं कि आगे हम स्पेशल डायोड्स भी अभी कर लें। नो मैम, मैं बस कल कर ले। मैम काफी नहीं है मैम, बस 12 बजे दूसरी क्लास है। है तो मैम 12 बजे दूसरी क्लास से और नाश्ते भी नहीं किया मैम, अभी के लिए इतना काफी है। अच्छा चलिए ठीक है, सही है। क्या सब लोग यही कहते हैं? सब लोग कहते हैं कि यस मैम। चलिए चलिए फिर कल हम इंशाल्लाह स्पेशल, कल फिर मुझे टाइम देंगे कि कल हम स्पेशल पर्पस डायोड सारे खत्म कर लें। 4 हैं, 4 कर लेंगे। सही है। फिर हमारा डायोड 1.5 घंटा तो दे रहे हैं आपसे। मैं असद रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दें अब।